Our top focus at this hour comes from the state of Odisha. Now, in a major update in connection with the Odisha shocker, Professor Ashutosh Biswas, Executive Director of AIIMS Bhubaneswar, said that the victim in the case will now be shifted to AIIMS Delhi and the shift could take place within 2 to 2.5 hours. Now, Dr. Biswas also mentioned that the girl is in stable condition and it's safe to transfer her. She will be airlifted by a special chartered flight and arrangements have already been made at AIIMS New Delhi. Major update coming in the Odisha shocker case. Now the victim will be shifted to AIIMS Delhi from AIIMS Bhubaneswar. According to the doctor, he said that she will be airlifted by a special chartered flight. Arrangements have already been made in the capital. As far as the condition of the girl goes, currently she is in stable condition and she is safe to be transferred. Now this shift could take place in the next 2 to 2.5 hours. And this is the latest information that we're getting in from the Executive Director of AIIMS Bhubaneswar, Ashutosh Biswas. Remember, the minor girl was set on fire. Nowadays, we can also shift the patient to AIIMS Delhi, and we are planning for shifting. And maybe within 2 hours, within 2.5 hours, it is stabilized. A little bit patient has improved, so it is time probably safe to transfer. All right, my colleague is now joining me, Shubrat Das. Shubrat, ये जो latest statement आया है डॉक्टर का about the condition of the victim and that she will be likely shifted to Delhi AIIMS. Please tell us more about this. यस अभी जो एम्स का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आशुतोष विश्वास उन्होंने जानकारी ये दे रहे थे कि पेशेंट का जो सिचुएशन स्टेबल है और वो अभी पेशेंट को जो सोर्सेस से जानकारी मिल रहा है 12:30 PM को वो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली एम्स के लिए शिफ्टेड किया जाएगा और वो दिल्ली एम्स के टीम के साथ कांटेक्ट में है भुवनेश्वर एम्स का टीम जैसे कि उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द सही तरीके से हो पाए। तो 12:30 PM को वो एयरलिफ्ट किया जाएगा पेशेंट को भी, यही अपडेट अभी मिल रहा है एम्स की तरफ से। और शुभ्रत, एक और जानकारी जो हमें मिली है वो ये है कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है पुलिस से। क्या आप और इस बारे में कुछ जान पाए हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस ने पीड़िता का जो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है जो कि सब कलेक्टर और जो उस थाना का बलांग थाना का जो थाना IIC इंचार्ज थे वो भी आए थे और उनके सामने जो उनका बयान रिकॉर्ड किया गया और इम्पोर्टेंट बात ये कि वहाँ पे एम्स का मेडिकल स्टाफ भी प्रेजेंट थे और वीडियोग्राफी भी किया गया ताकि फ्यूचर में स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंट दिया जा सके, तो उसका स्टेटमेंट भी लिया गया है फिलहाल। धन्यवाद शुभराज जी हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। Now viewers who are just joining us, let's set the context for this case. The 15-year-old girl in this case was set on fire by unidentified persons in Puri district. The incident took place on Saturday and this is when the girl was admitted to AIIMS Bhubaneswar. And now she is in a stable condition and she will be shifted to AIIMS New Delhi. And according to the initial investigation in the case, 3 unidentified motorcycle-borne youths intercepted this minor girl around 9 AM. This was at Bayabar village in Balanga police station area and this is when she was going to a friend's house. Now these men forcibly took her to the banks of Bhargavi river, sprinkled an inflammable substance on her body and set her on fire, according to police officials. This incident took place around 1.5 km from her house at Nuwa Gopalpur Basti and this was just about 5 to 7 kilometers from Balanga police station. Now following this incident, the miscreants fled the spot. Local people were involved. They had to douse the fire and they took the victim to Pipli Government Hospital from where she was shifted to AIIMS Bhubaneswar. My colleague Shubrat Das is with me on the story.
शुभ्रत, हमने सुना है जो ऑपोजिशन है दैट हैज़ बीन टारगेटिंग द गवर्नमेंट ओवर द इशू, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले हमने देखा बालासोर में भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था। उसकी जानकारी हमें ये बताएंगे, अब प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं साइट पर? ये तो आप सवाल अच्छा पूछे कि जो जैसे ही बालेश्वर के बाद पुरी का जैसे इंसिडेंट हुआ तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट भी कर रहे कि एक दिन में मतलब एक दिन बाई दिन ऐसे हादसा क्यों हो रहा है और सरकार क्यों ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। तो पुरी का जैसे हादसा हुआ, ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और कल ही जैसे एम्स में जो पुरी का विक्टिम को जो एडमिट किया गया था तो सामने अपोजिशन पार्टी एम्स के सामने भीड़ लगाना शुरू कर दिए और अपोजिशन पार्टी बीजेडी कांग्रेस का लीडर एम्स में आना शुरू कर दिए। तो यही पे जाहिर सी बात ये भी प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर की टीम को कि बार बार कोई पॉलिटिकल लीडर आके वहाँ भीड़ जमाना ये ट्रीटमेंट के लिए व्याघात भी सृष्टि करता है, ये भी सोचना चाहिए। इसीलिए एम्स ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दिया और उसके साथ तुरंत ही कमिश्नरेट ऑफ पुलिस भुवनेश्वर ने एक रात को नोटिफिकेशन जारी करके इंफॉर्मेशन ये दिया कि BNS 163 भारतीय न्याय संहिता 163 लागू किया गया ताकि एम्स के परिसर में ज्यादा भीड़ ना जमाए, जैसे कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो या डॉक्टर टीम को प्रॉब्लम हो। इसीलिए एक BNS भी लागू किया गया और पॉलिटिकल पार्टी को वहां जाने के लिए मना भी किया गया है। बिल्कुल शुभ्रत जी, और हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट आई थी वहाँ बीजेडी के वर्कर्स, कांग्रेस के वर्कर्स दोनों प्रेजेंट थे एंड नाउ दे कॉलिंग कि जो सीएम है उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए एट दिस पॉइंट, और जवाबदेही बनती भी है सरकार की कि कैसे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी, क्योंकि उनका मांग है कि यहाँ मोहन मांझी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे हर रोज ये हादसा ऐसे घटित होगा तो सरकार में रहने के कोई अधिकार नहीं है, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये उनका कांग्रेस और बीजेडी का मांग रही आ रही है, क्योंकि जब बालेश्वर का इंसिडेंट हुआ था तभी से ये बोल रहे कि मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन देना चाहिए। तो एक के बाद एक घटना जैसे हो जाता है तो लोगों में आक्रोश होता है और उसके साथ भी अपोजिशन में जो पार्टी होता है उनको भी आक्रोश लग जाता है कि मुख्यमंत्री अगर संभाल नहीं पा रहे तो इस घटना में तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये लोगों के साथ पॉलिटिकल पार्टी भी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और शुभ्रत हमारे दर्शकों को और बताएं इस समय जो विक्टिम की हालत है वो कैसी है? हमने सुना डॉक्टर ने बोला क्योंकि कंडीशन अब स्टेबल हो चुकी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन्हें ट्रांसफ़र दिल्ली, उस बारे में हमें थोड़ा और बताएं। जी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मीडिया के साझा कर रहे थे कि पेशेंट का कंडीशन अभी स्टेबल है ताकि उनको शिफ्ट किया जा सके दिल्ली एम्स, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल का ट्रीटमेंट हो पाए। जैसे स्टेबल है इसीलिए वो एयरलिफ्ट के बारे में उनका एम्स का जो टीम ने डिसाइड किया है। तो अभी जो जानकारी मिल रहा है पेशेंट का कंडीशन स्टेबल है, हालांकि वो ICU में है। राहत की खबर है कि वो वेंटिलेटर में नहीं है, ये एक अच्छा खबर है। बिल्कुल, ये एक्चुअली इट्स अ गुड न्यूज़ टू नो दैट द विक्टिम इज़ राइट नाउ इन अ स्टेबल कंडीशन। वो वेंटिलेटर पर नहीं है और वो इस कंडीशन में है कि अब उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। तो और बताएं कि उनका इस समय ट्रीटमेंट जो यहाँ पे चलेगा दिल्ली एम्स में, हमें बताया जा रहा है कि उसके लिए अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं, और क्या जानकारी मिल रही है, कैसे प्रोसीड होगा वो? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाता है कि अगर कोई एयरलिफ्ट होता है तो जिस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है पहले उस डिपार्टमेंट या उस हॉस्पिटल में कम्युनिकेट तो किया जाता है। तो दिल्ली एम्स में कल जब भुवनेश्वर एम्स में जब पीड़िता एडमिट हुई थी तो तब से ही दिल्ली एम्स की टीम के साथ कोऑर्डिनेट हुआ था। अगर कोई ज्यादा हाई ट्रीटमेंट के लिए वो विक्टिम को भुवनेश्वर से दिल्ली ट्रांसफर करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो भुवनेश्वर का टीम बराबर टच में थी दिल्ली एम्स के टीम के साथ। जैसे ही उनका कंडीशन स्टेबल में आई कि वो डॉक्टर का टीम चेक करने लगे कि ये शिफ्ट हो सकती है, देन द टीम विल डिसाइड किए कि उनको ट्रांसफर करेंगे दिल्ली एम्स को, वो भी स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में। वो जो जानकारी मिल रही है 12:40 PM को भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए शिफ्ट किया जाएगा।